There are three main constituencies that must be kept in mind when we talk about structural changes. The first and the foremost is to increase the investment to GDP ratio. Pakistan has one of the lowest investment to GDP ratio. We are around at 14%, while comparable economies are around 30%. And really, there is a desperate need to increase that number, improve that number. And the improvement in that number will come through when we use the guillotine to get rid of the red tape, and we end the bureaucracy, and we facilitate the investors in terms of investments rather than getting them entangled into various requirements of licensing and otherwise. So that is the starting point. The second important thing is to see how we can enhance our exports and diversify our exports as well. Again, like the investment to GDP, interestingly enough, our imports are not much. They are actually in line with the size of the economy that we have. But it's the exports where we struggle. And we are talking about our exports of around 10% of the GDP. India is around 45%, and Vietnam is around 86%, 87%. So you can actually figure out where the problem lies. And this is where we need to work in. Now, two things there too. First is the productivity piece. From 2000 to 2020, our productivity increased by 1.5 times, merely. You know how much India improved? 5 times. And how much Vietnam improved? 10 times. So obviously they will have an advantage, and those are reflecting in their export numbers too. The second one is that we need to really look at our entire subsidy structure and our tariff structure. Our tariff structure and subsidy structure is actually giving a protection to those sectors which are non-competitive in nature. And those non-competitive sectors, when they get into export, they obviously cannot sustain it for a longer period of time when there's a downturn, which is bound to happen. So therefore, we need to encourage all those competitive sectors to be making their segue into the exporting sector and enhance our exports from 60% currently from textiles to on the agriculture side, on the IT side. We are still struggling on that front too because of these two reasons. And those two reasons must be taken care of right away. The import tariffs, where the intermediary, right now, by the way, we are at 19.6%. We need to bring it down to around 14 point some percent in the next 3-4 years. Then we'll become more competitive. The whole idea of import in substitution is needed to be understood and then acted upon carefully. So that's the second piece. The third piece is related to, and you'll be very surprised to hear this from a banker, is the fact that government really needs to bring its debt levels down. जो हमारे बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जी हम तो बड़े खुश हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है और वो हम जो है वो हमें इजी मनी मिल जाती है. Contrary to that, because the flip side of that is कि अगर हम अपना फिस्कल अकाउंट का एक्ट ठीक कर लें, which means कि हम अपना टैक्सेशन का पीस ठीक कर लें, which means कि हम अपने SOEs का एक्ट ठीक कर लें गवर्नेंस के स्टैंड पॉइंट से, तो हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी आ जाएगी ऑफ लेंडिंग. Until these three problems are settled, we will have a problem at hand and risk always there to not being able to grow at a pace that we require to grow in order to cater to 1.5 million jobs which are required to be created every year in Pakistan. There is a requirement to convert, mandatory requirement to convert into Islamic banking. There are still a lot of loose ends to be tied up. वो टाइमलाइन बहुत करीब आ गई है, 2027 की टाइमलाइन है दिसंबर की, मगर कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज ऐसे हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल कि क्या एसेट लाइट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बना लिया है टू कन्वर्ट देयर ओन डेट इनटू शरिया कंप्लायंट डेट एज वेल, द कन्वेंशनल डेट, और उसकी एब्सेंशिया में द कन्वर्जन विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क. How will we deal with the correspondent banks? How will we respond? How will they respond? जो सबसे ज़्यादा दुनिया में
हाईएस्ट लेवल ऑफ इस्लामिक बैंकिंग जो हो रही है वो 43% है ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री दैट इज़ इन Malaysia. And Malaysia is aiming to get to 55% in the next 10 years. और हम यहाँ कह रहे हैं कि हम 2 साल में कन्वर्ट कर देंगे 100% के अंदर. उसके लिए बैंक्स आर फुली geared up and committed. मगर उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं ना, जेन्युइन स्ट्रक्चरल इश्यूज है, that needed to be addressed and we need to be more realistic about it because we end up doing more harm to this process than help, which on its own also the banks really want to convert to Islamic banking because there is a genuine need for it, business need for it. But then those structural matters must be addressed. हमारे पास treasure trove of our data है available in different pockets. टेलको का डेटा है, बैंकों का डेटा है, टैक्सेशन का डेटा है, पावर कंपनीज का डेटा है, मगर वो आपस में बात नहीं कर रहे. We need a structure where they will talk to each other and then people pick up the data which is necessary for their own needs, for their own credit assessment, which will help in promoting this credit का culture जिस तरह US में है, not just in the banking industry but even outside banking industry. आप ये देखिए ना कि अगर लार्ज कोई रिटेलर है और वो किसी को क्रेडिट देना चाहता है और ही कैन गेट दी एक्सेस ऑफ द डेटा कि इसका बिल का ट्रेंड कितना रहा है और इसने बिजली का बिल पिछले 1 साल में कितना पे किया, कि वो खुद भी असेसमेंट कर सकता है. और अब तो टूल बने हुए हैं, सारे के सारे डिजिटल टूल अवेलेबल हैं कि आप उसमें 4 चीज़ें डालेंगे और आपके सामने आ जाएगा. बैंकिंग इंडस्ट्री नीड्स टू लुक एट न्यू वेज ऑफ असेसिंग क्रेडिट. ये डिजिटल लेंडिंग का जो स्पेस है ना, उसको हमें आज डोमिनेट कर लेना चाहिए, अदरवाइज विल मिस द बोट. बिकॉज जो एजिलिटी है ना और जो रोबस्टनेस है ना ऑफ फिनटेक सेक्टर, उससे हमारे लिए compete करना बड़ा मुश्किल होगा. हम इतने बड़े बड़े साइज के एलिफेंट्स हैं कि हमें तो एक एलिफेंट को मुड़ने के लिए इतना टाइम चाहिए होता है, वो छोटा प्लेयर जो है तो बड़ी जल्दी उस पर को रिस्पॉन्ड करता है. एक्चुअली ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है टू द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड दैट इज नीड टू बी हाईलाइटेड. तो वो कोलैबोरेशन जितनी जल्दी हम शुरू कर लेंगे ना, उतनी जल्दी वी विल बी एबल टू राइड ऑन द बैक ऑफ दिस ट्रेंड एंड वी विल बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दिस चेंजिंग सिचुएशन. चलिए हम 10 साल बांध लेते हैं. 10 साल के बाद भी अगर आपने डोमिनेट भी कर लिया ना डिजिटल लेंडिंग स्पेस, डिजिटल लेंडिंग स्पेस में फिर वही होने वाला है जो फिनटेक में यहाँ पर है ऑन द पेमेंट साइड. और वहाँ पर आप जो है ना, वो यहाँ तो आपसे बैंक फिर भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर लेंडिंग का पीस आपका जो है ना वो रिटेलर के पास चला जाएगा. क्योंकि अगर रिटेलर, स्पेशली द लार्जर रिटेलर्स, इफ दे पुट देयर एक्ट टुगेदर और विद द टेक्नोलॉजी कमिंग थ्रू, जैसा मैंने आपसे कहा है कि वो पूरे मॉडल बने हुए हैं जिसके ऊपर स्कोर कार्ड आपके सामने आ जाएगा. और तब तक अगर फाइनेंशियल डेटा एक्सचेंज आ जाता है अगले 10 साल के अंदर, तो बैंक्स के लिए एक और थ्रेट भी है. वो ये है कि ये लेंडिंग स्पेस भी जो है ना वो भी आपके लिए तंग हो जाएगी. एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड दैट योर बिजनेस मॉडल विल बी सो रोबस्ट from a service perspective, from a reach perspective, that you will be able to still continue to grow and continue to challenge these risks which are coming your way. जब प्रायोरिटी सेक्टर की हम बात करते हैं ना, तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फराज. एक जो होता है वो इकोसिस्टम होता है. दूसरा एस्पेक्ट है ना, वो एक हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो ये कहता है कि जी गवर्नमेंट से सपोर्ट लेनी चाहिए. गवर्नमेंट प्रायोरिटी सेक्टर दुनिया भर में गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता. इवन द कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इज़ मक्का ऑफ कैपिटलिज्म, वहाँ पर भी आप आज भी जाके देख लीजिएगा कि वहाँ पर जो वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक फंड है एनर्जी का, वो कितने लोगों को सपोर्ट करता है. टेस्ला बाय द वे इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ दैट कंसेशनल फाइनेंसिंग विच वॉज एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जहाँ ये पहुँचे उसमें बहुत सारी चीज़ें, कंपनीज बंद भी हो गई. मगर प्रायोरिटी सेक्टर गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर दुनिया भर में नहीं हो सकता. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम जो है गवर्नमेंट से नहीं, हमें गवर्नमेंट से मुंह फाड़ के मांगना चाहिए कि आप हमें फर्स्ट लॉस गारंटी की सपोर्ट दें, आप हमें सपोर्ट दें ऑन द फिस्कल साइड, आप हमें सपोर्ट दें ऑन द कैपिटल रिलीफ साइड. हमें ये डिमांड करना चाहिए विद द गवर्नमेंट अगर हमने ये प्रायोरिटी सेक्टर्स को सपोर्ट करना है गोइंग टू द फ्यूचर, बिकॉज दिस इज द वे इट वर्क्स अक्रॉस द ग्लोब. हम दुनिया से अनोखे नहीं हैं, हम भी इस दुनिया का ही हिस्सा हैं. I genuinely believe it's an economic imperative.
जिस तरह मैंने कहा इकोनॉमिक और सोशल को आप क्योंकि सेपरेट नहीं कर सकते, सोशल इम्पेरेटिव एज वेल। एन इकोनॉमी जिसमें 50% आपके जो हैं वो ख़वातीन हैं और उस 50% में से आप जो है वो सिर्फ आधे लोग जो हैं ख़वातीन जो हैं वो काम कर रही हैं। द ग्लोबल एवरेज अराउंड 35%, वी आर एट 23%। अगर वो बाय द वे वो 23 भी क्वेश्चनेबल, सम पीपल से इट्स 17-18%। चलिए मैं वो नंबर भी 23 ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि सिर्फ हम अगर बढ़ा के 35% पे चले जाएं और 50% ऑफ द इकोनॉमी, तो हमारी जो जीडीपी है वो $100 बिलियन से बढ़ सकती है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग नंबर एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई बिलीव दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रमोट women inclusion.